Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Welcome to Private University Cohort by premed.pk. This is Tahreem Gardezi here, and today we will be having our first demo class for this cohort. So let's start with the basics. So Private University Cohort by premed.pk is actually designed for the students who will be appearing in private universities tests like Aga Khan University, Shifa and Ziauddin University. Let's talk a little about the offerings of this cohort. So basically, this cohort is going to have live lectures along with their recordings for the students who will be taking these. Other than the lectures, we are going to have notes and homeworks for you guys and weekly tests as well. So these things are going to help strengthen your preparation. Let's have a little introduction about myself. So, as I've told before, this is Sahim Gretezi here, and I will be your biology instructor in this cohort. I scored 182 in my MTCAT exam, and in my Aga Khan University sciences portion, my percentage was 82.45%, and I have almost 4 years of teaching experience. So let's start. Let's talk about the chapter we will be discussing in today's demo class. So the chapter is actually chemical coordination, and इसके अंदर जो topic हमने discuss करना है, that's actually pituitary gland. So we'll delve deep into the chapter and the subtopic exactly. So let's start. Talking about pituitary gland, can you guys let me know where is pituitary gland actually located? Like in which organ of your body? To be very precise and exact. You guys can write in the chat box and I will be doing the chat box साथ साथ. ठीक है? So when we talk about pituitary gland, so yeah, pituitary gland is actually present in brain, right? अच्छा, brain में अगर हम उसकी position की बात करते हैं, brain is just the organ we are naming, right? अगर we exactly talk about the position of pituitary gland inside the brain, so we are going to say that pituitary gland is actually a pea-sized endocrine gland, and that is located at the base of brain beneath the hypothalamus. So अगर हम इसकी exact location की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि it is present beneath the hypothalamus, कि hypothalamus के नीचे present है, and it is also present at the base of brain. ठीक है? So basically आपके पास ये एक endocrine gland है. Let's talk about glands. Can you guys name the type of glands we are having inside us? I would appreciate your contribution in the lecture as well. So you guys can write your answers in the chat box. When talking about the types of glands in human body, the ones we have discussed so far, yeah, we have two types of glands. One is the endocrine gland and the other one is exocrine, right? And यहाँ पे लिखा हुआ है कि pituitary gland is an endocrine gland. What's the difference between endocrine and an exocrine gland? How can you actually differentiate? Like, what's the difference? अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल फॉर यू गाइस. देखो, हमारी बॉडी में दो टाइप्स की ग्लैंड्स होते हैं. एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन. ठीक है? कुछ ग्लैंड्स हमारे ऐसे होते हैं, दे आर डक्टेड. ठीक है? जिनके साथ डक्ट्स होती हैं, दे आर एक्चुअली एक्सोक्राइन. और कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं, दे आर डक्टलेस, देयर इज नो डक्ट. ठीक है? दोज ग्लैंड्स आर एक्चुअली एंडोक्राइन. जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि आपके पास ग्लैंड कहीं प्रेजेंट होगा और टारगेट ऑर्गन कहीं होगा. ठीक है? बिकॉज देयर इज नो डक्ट, तो आपके पास जो भी आपने भेजनी है चीज, वो कैसे जाएगी? थ्रू ब्लड जा रही है. ठीक है? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिस तरह आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, दे डू हैव डक्ट्स इन देम. डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपके पास ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है? मोस्ट ऑफ देम डू हैव डक्ट्स. ठीक है? जिस तरह आपके पास लिवर एज अ ग्लैंड, राइट? सो दे आर एक्चुअली एंडोक्राइन, सॉरी एक्सोक्राइन. ठीक है? यहाँ पे हम एंडोक्राइन की बात करें, सो when we talk about endocrine gland, so we must know what is an endocrine gland. Endocrine glands are ductless glands, yani there is no duct. Then how is actually the hormone we are talking about? Chemical coordination में hormone होता है ना, तो जो hormone जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कैसे target तक जाएगा? How is the hormone going to reach the target? देखो, जब हम nervous coordination की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो messenger होता है, that is न्यूरॉन. ठीक है? आपके पास मैसेज न्यूरॉन के थ्रू जा रहा होता है. ठीक है? पर जब हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो आपके पास मैसेज कौन लेके जा रहा है? हार्मोन लेके जा रहे हैं. ठीक है? और वो हार्मोन मैसेज कैसे लेके जाएगा? सिंस देयर इज नो डक्ट इन्वॉल्व्ड, तो वो लेके जाएगा थ्रू ब्लड. एक्सीलेंट. कैसे लेके जा रहा है वो? थ्रू ब्लड.
ठीक है। अब लेट्स से हम यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, बट पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी किस किस के फंक्शंस को कंट्रोल करे, लाइक इट इज कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ योर थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इट इज कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कितना डिफरेंस है, लाइक कितने दूर दूर हैं आपस में, बट स्टिल थ्रू ब्लड यू नो द हार्मोन कैन एक्चुअली ट्रैवल एंड गो देयर, ठीक है। So then it is often referred to as master gland because it controls several other endocrine glands. तो ये आपके पास बाकी endocrine glands को भी control कर रहा होता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, master gland. If we talk particularly about the master gland, then we are going to say कि master gland particularly किसको कहा जाता है, anterior lobe of pituitary gland को, anterior lobe of pituitary gland is known as the master gland, ठीक है। Talking about the structure of pituitary gland, ठीक है। सो हम कहते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर 3 लोब्स हैं, ठीक है। वन इज द इंटीरियर लोब, सेकंड इज द पोस्टीरियर वन एंड थर्ड वन इज द मीडियन लोब, ठीक है। इंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है एंड पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और मीडियन लोब को इंटरमीडिएट लोब भी कह सकते हो, ठीक है। अब जो आपके पास इंटीरियर लोब है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास ये बहुत से हार्मोन, अब देखो यहाँ पे हमने वर्ड्स के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस वेरियस हार्मोन्स, ठीक है। सो जब हम एंटीरियर लोब की बात करते हैं तो एंटीरियर लोब हार्मोन्स को प्रोड्यूस भी कर रहा है और रिलीज भी कर रहा है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब स्टोर करता है एंड रिलीज करता है। डज दैट इंप्लाई कि पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूस भी करते हैं हार्मोन को, यस और नो? यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्टीरियर लोब स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन्स, सो कैन पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूस अ हार्मोन, यस और नो? नहीं कर सकता, एग्जैक्टली तो आपके पास जो पोस्टीरियर लोब है इट कैन नॉट प्रोड्यूस अ हार्मोन। वो कहाँ से हार्मोन लेता है, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इसका मतलब हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं वो रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर्स के साथ साथ आपके पास 2 हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करें, जो प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस के अंदर हो रहे हैं, बट वो स्टोर और रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देन वी हैव द मीडियन लोब, एंड मीडियन लोब इज एक्चुअली द इंटरमीडिएट लोब। ये आपके पास लोअर वर्टेब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, बट इट इज रूडिमेंट्री इन ह्यूमंस, यानी ये थोड़ी सी इतनी ज्यादा प्रीडोमिनेंट नहीं है इन ह्यूमंस, ठीक है। ये सिक्रीट क्या करती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज MSH, ठीक है। और ये आपके पास इट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। आपके पास स्किन पिगमेंटेशन के लिए इसका फंक्शन बेसिकली स्किन पिगमेंटेशन होता है। लेट्स सी दिस डायग्राम हियर। यहाँ पे आपके पास दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंटीरियर लोब है, उसका पोस्टीरियर लोब है। देन वी हैव हाइपोफिजियल पोर्टल वेन है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं। अब ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स किस चीज के होते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दे आर एक्चुअली ऑफ, बच्चों न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स किसके होते हैं, हाइपोथैलेमस के ना, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स किसके होते हैं, हाइपोथैलेमस के। यानी हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, अभी मैंने उनका फंक्शन बताया, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स, और साथ ही साथ ये क्या कर रहे होते हैं हाइपोथैलेमस, ये 2 हार्मोन भी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बना रहे होते हैं, जो कि पोस्टीरियर लोब स्टोर और रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। Then talking about anterior pituitary, we are going to talk about it in detail. We have first hormone that we are going to discuss about, it is actually growth hormone, और उसे somatotrophin भी कहा जाता है, ठीक है। अब growth hormone क्या है, आपकी growth के अंदर help कर रहा है, it stimulates the growth of bones, muscles and tissues, ठीक है। bones, muscles और tissues की growth के अंदर anterior lobe का जो hormone है that is growth hormone वो help कर रहा है। Other than that, it also regulates metabolism, ठीक है। metabolism क्या चीज होती है बच्चों, what is meant by metabolism? What is meant by मेटाबॉलिज्म, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। Let me see your questions जब तक। About hypophyseal portal system, hypophyseal portal system एक्चुअली आपके पास एक सिस्टम है ब्लड वेसल्स का, ठीक है। ये आपके पास हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग फैक्टर अगर पिट्यूटरी के पास आना है तो वो कहाँ से आएगा, थ्रू हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। Some of all the biochemical reactions, yeah, so some of all the chemical reactions that are actually taking place in a human body या किसी भी body के अंदर, in a living organism, we call that
मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी आपके पास बड़ी चीज से छोटी चीज बन रही है, छोटी चीज से बड़ी चीज बन रही है, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म वी से इट इज बेसिकली द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अभी जो ग्रोथ हार्मोन की हम बात करें, ये आपके लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर मेटाबॉलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, और साथ ही प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज करता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, देखो प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है? लाइक व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी? या आपके पास मसल सेल या टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन का क्या फंक्शन है? देखो जब हम अपने न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं ना बॉडी के अंदर, सो वी टॉक अबाउट मेजर, हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। वी टॉक अबाउट कार्ब्स, वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स एंड वी टॉक अबाउट लिपिड्स, राइट। सो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, दैट्स एक्चुअली द बेसिक एनर्जी सोर्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। लाइक देखो हमने कुछ भी खाना खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एंड योर डाइट एज वेल, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो आपका बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। आपको जितनी भी एनर्जी चाहिए फॉर डेली लाइफ एक्टिविटीज, ठीक है, मुझे चलना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे कुछ भी करना है, द एनर्जी आई नीड फॉर दैट इज एक्चुअली बेसिकली कमिंग फ्रॉम कार्ब्स, ठीक है। जब हम फैट की बात करते हैं तो वो बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करे, फैट्स, ठीक है, और साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके सेल की सेल के अंदर का मेजर कंपोनेंट है लिपिड, ठीक है, या फैट्स कह दो। अदर देन दैट वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स, ठीक है। सो प्रोटीन का काम ये होता है कि बॉडी के अंदर कोई भी मेंटेनेंस या रिपेयर का काम करना हो, ठीक है, दैट इज एक्चुअली प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपने ग्रोथ करवानी है बोन्स की, मसल्स की, टिश्यूज की, ठीक है, तो प्रोटीन का भी मेजर रोल है। एंड अदर देन दैट ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। बट स्टिल देयर आर सम डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द ग्रोथ हार्मोन। लेट्स से ग्रोथ हार्मोन आपके पास बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, ठीक है। नाउ कम्स टू कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन एज एन ग्रोइंग एज, यानी एक बंदा है वो ग्रोइंग एज है उसकी अभी, ठीक है, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया है, तो द डिजीज दैट इज एसोसिएटेड विद दैट इज जाइजेंटिज्म। जाइंट से याद रखो, जाइंट बड़ा सा होता है ना, तो जाइजेंटिज्म याद रखो, वो भी वैसा ही होगा। लाइक आपके पास जो बॉडी होगी, लाइक ओवरऑल बॉडी प्रोपोर्शन सही रहता है इसमें, ठीक है, बट ओवरऑल आपके पास जो हाइट होगी वो लंबी होगी इस तरह, ठीक है। सो जाइजेंटिज्म आपके पास चिल्ड्रन में होता है व्हेन देयर इज एक्सेस ग्रोथ हार्मोन। और अगर ये एडल्टहुड में आपके पास ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए, देखो लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल फॉर यू गाइस। आपके पास ये बोन है, ठीक है, लाइक दिस इज द बोन, ठीक है। जब हम बोन की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे होती है एपिफिजियल प्लेट्स, ठीक है, जो आपको ग्रोथ अलाउ करती हैं, ठीक है। यानी आपके पास यहाँ से इस तरीके से ग्रोथ होती है ड्यूरिंग योर ग्रोइंग एज, बट वंस ग्रोइंग एज खत्म हो गई है, ठीक है, नाउ यूर एन एडल्ट, उसके बाद योर बोन्स कैन नॉट ग्रो इन लेंथ, ठीक है, बट जो ग्रोथ हार्मोन है वो तो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ग्रोथ कहीं ना कहीं तो होनी है, तो वो ग्रोथ कहाँ होगी? Why protein synthesis takes place when our body already contains them? That is actually a good question, but let me answer that for you guys. देखो प्रोटीन आप जब जो भी इनटेक कर रहे हो, when you studied the chapter digestion, उसमें आपने ये पढ़ा था कि end product आपके पास क्या होता है? That is amino acids, right? आपके पास प्रोटीन की फर्दर डाइजेशन होते 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 पहले पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टोन्स बने, एंड पे क्या बन गया? अमाइनो एसिड्स, देन दे वेंट टू लिवर, राइट? यही हुआ था ना। तो अब आपके पास फर्दर जो प्रोटीन्स आपकी बॉडी को चाहिए उनको सिंथेसाइज बॉडी ही कर रही है, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग दोज अमाइनो एसिड्स, क्योंकि अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन्स, राइट? सो वट एवर यू आर ईटिंग दैट इज बीइंग डाइजेस्टेड, वो आपके पास उस फॉर्म में बॉडी में नहीं रह रहा। लेट्स से वी आर ईटिंग कार्ब्स, तो वो आपके पास ग्लूकोज बन रहे हैं, मोनोसेकेराइड, तो वो डाइजेशन हो गई थी। जो प्रोटीन भी आप इनटेक कर रहे हो उसकी भी डेफिनेटली डाइजेशन हुई, ठीक है, वो अमाइनो एसिड बन गया, तो बॉडी को जो फर्दर प्रोटीन्स चाहिए वो प्रोटीन सिंथेसिस खुद करती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास फर्दर लेंथ के अंदर इंक्रीज नहीं आ सकता, ठीक है। तो इंक्रीज कहाँ आएगा? विड्थ के अंदर। आपके पास बोन का साइज तो इंक्रीज करेगा बट लेंथ में अब हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास देयर इज नो मोर पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द बोन इन लेंथ, ठीक है, उसका साइज लेंथ में इंक्रीज नहीं हो सकता। तो यहाँ से विड्थ इंक्रीज हो जाती है बोन की, दैट इज एक्चुअली एक्रोमेगैली। अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो इसमें ये होता है कि हैंड्स और फीट बहुत बड़े बड़े होते हैं, जॉ बोन बहुत बड़ी है,
ठीक है। सो आपके पास फर्दर लेंथ के अंदर इंक्रीज नहीं आ रहा बल्कि विड्थ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास डेफिशिएंसी हो गई है ग्रोथ हार्मोन की, तो द बीमारी दैट इज एसोसिएटेड विद इट दैट इज पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ बोने को कहा जाता है, यानी उसमें आपकी हाइट छोटी रह जाएगी, बॉडी प्रोपोर्शन नॉर्मल होगा। देखो आपके पास जब हम बात करते हैं जाइजेंटिज्म और ड्वार्फिज्म की, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इसके अंदर देयर इज नो इफेक्ट ऑन बॉडी प्रोपोर्शन। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नो इफेक्ट ऑन बॉडी प्रोपोर्शन, यानी बॉडी प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, आपके पास आईक्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटेलिजेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे हमने ऐसी डिजीजेस पढ़नी है दैट आर गोइंग टू हैव इफेक्ट ऑन आईक्यू एंड इंटेलिजेंस। बट यहाँ पे बिकॉज आपके पास ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेसिव अमाउंट में आ रहा है या फिर कम अमाउंट में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी आपको एसोसिएटेड बीमारी है, दैट इज गोइंग टू हैव नो इम्पैक्ट ऑन योर आईक्यू और योर इंटेलिजेंस व्हाटसोएवर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या करना है, नाम ही इसका बता रहा है। When we talk about thyroid stimulating hormone, as the name states, what's the function? As you can write in the chat box, thyroid stimulating hormone की हम बात करें, नाम इंडिकेट कर रहे, इट इज स्टिम्युलेटिंग द थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये आपके पास किसको स्टिम्युलेट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट कर रहा है। ठीक है, और आपके पास क्या चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, आपके पास थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज टेट्राआइडोथायरोनिन, और साथ ट्राईआइडोथायरोनिन T3 भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स हैं जो इसने प्रोड्यूस करने हैं। कौन प्रोड्यूस करेगा, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा। थायराइड ग्लैंड को आके कौन कह रहा है कि इन दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करो, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को किसने कहा कि वो रिलीज हो जाए, एनी आइडिया अबाउट दिस? देखो हम अभी ऐसे चल रहे हैं ना, थायराइड ग्लैंड को किसने कहा कि वो अपने दो हार्मोन्स रिलीज करे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कहां से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, राइट। बट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को किसने कहा कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करे, इसका सिग्नल कहां से आ रहा है, TSH is being released from the anterior lobe of pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से ही ये रिलीज हो रहा है हार्मोन। TSH इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ही रिलीज हो रहा है, तो इंटीरियर लोब भी तो नहीं इससे कहेगी ना रिलीज हो, हाइपोथैलेमस कहेगा। एक्सीलेंट, हाइपोथैलेमस से सिग्नल आ रहा है। देखो हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली समथिंग दैट इज कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस से आपके पास एक रिलीजिंग फैक्टर आएगा। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, रिलीजिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग फैक्टर्स भेजना ना। ठीक है, सो आपके पास हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर आएगा। ठीक है, दैट इज थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर, TRF। ठीक है, आपके पास TRF फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये आया है। ठीक है, और TRF हाइपोथैलेमस से आया, इंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज हुआ, उसने जाके एक्ट किया थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 रिलीज हुए। ठीक है, what about calcitonin? Calcitonin is also a hormone that is being released here, यानी हम जब थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं हम यहाँ लिख देते हैं, एक और हार्मोन भी है दैट इज कैल्सीटोनिन, पैराथॉर्मोन के एंटेगनिस्टिक है ना। सो या इसी तरह अगर मैं ग्रोथ हार्मोन की बात करूं, नाउ यू गाइस आर गोइंग टू मेक द पैटर्न, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोफिन, guys can write in the chat box कहाँ से रिलीज हो रहा है। टॉकिंग अबाउट ग्रोथ हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी, एक्सीलेंट, सही जा रहे हो, राइट। आपके पास जो ग्रोथ हार्मोन है, नॉट हाइपोथैलेमस बट एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो एक और चीज बता देती हूँ, ये जितने भी ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं ना, ये कहाँ से आ रहे होते हैं, दीज आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। इस तरह याद कर लो, हाइपोथैलेमस से जो भी आएगा ना, वो बताएगा कि मैं हाइपोथैलेमस से आया हूँ, क्योंकि उसके साथ क्या होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब भी कोई भी हार्मोन बच्चों हाइपोथैलेमस से आएगा ना, हाइपोथैलेमस, तो उसके नाम के साथ रिलीजिंग फैक्टर, या अगर वो इनहिबिटिंग हार्मोन है तो इनहिबिटिंग फैक्टर लगा हुआ होगा। जिस तरह अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर, एंड पे RF लगा हुआ है ना, आपको पता चल गया ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर आपके पास ये ट्रॉफिक हार्मोन है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन है ये, ठीक है, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, इंटीरियर पिट्यूटरी को किसने कहा कि ये हार्मोन रिलीज करे, ग्रोथ हार्मोन, इंटीरियर पिट्यूटरी को
किसने कहा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करे? Talking about anterior pituitary, from where did anterior pituitary get the signal? Hypothalamus अंकल ने, excellent. ठीक है, तो hypothalamus से signal आपके पास आ रहा है to the anterior pituitary to release a hormone that is actually growth hormone. अब hypothalamus से क्या चीज आ रही है? हार्मोन आएगा ना, उसका नाम क्या होगा? अब देखो आपको इसका नाम पता है, सोमैटोट्रॉफिक। मैं बता देती हूँ आगे क्या लगेगा। वी हैव सोमैटोट्रॉफिक। कंप्लीट करो, मैंने बताया अभी अभी बताया कैसे पता चलेगा हाइपोथैलेमस से आ रहा है हार्मोन। क्या लिखूं आगे? We have written somatotrophic as representing that releasing factor excellent। तो मैं यहाँ SRF लिख देती हूँ, ठीक है। SRF या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी कह सकती हूँ मैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन भी लिख सकती हूँ, रिलीजिंग फैक्टर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसको आप कहते हो सोमैटोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये आ रहा है हाइपोथैलेमस से टू गिव सिग्नल टू द इंटीरियर पिट्यूटरी कि वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करे। ग्रोथ हार्मोन फिर बेसिकली ग्रोथ स्टिमुलेट करे ऑफ मसल्स, बोन्स एंड टिश्यूज, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हार्मोन दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनो से क्या चीज पता चल रही है? द वर्ड एड्रीनो, सिर्फ एड्रीनो को देखो अभी, और वट एवर द फर्स्ट थिंग कमिंग इन योर माइंड यू गाइस कैन राइट इन द चैट बॉक्स। टॉकिंग अबाउट एड्रीनो, क्या मतलब हो सकता है इसका? एड्रीनल ग्लैंड, राइट, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड लिख देती हूँ। एड्रीनल वर्ड किसको सिग्निफाई कर रहा होता है? किडनी को, एक्सेलेंट। बॉडी के अंदर कितनी किडनीज होती हैं बच्चों? बॉडी के अंदर कितनी किडनीज होती हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ T3 एंड T4? बेसिकली इसके ढेर सारे फंक्शंस होते हैं। आपके पास मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, ब्रेन फंक्शनिंग एंड एवरीथिंग, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में व्हेन वी डिस्कस थायराइड ग्लैंड। अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टच ईच एंड एवरी हार्मोन ऊपर ऊपर से, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल। पेयर ऑफ किडनीज, या एक्सीलेंट, दो किडनीज होती हैं, तो लेट्स से नो माइंड माय ड्राइंग, ठीक है, ये किडनी है, लेट्स से मान लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास एक हार्मोन होता है दैट इज ट्रायंगुलर शेप, ऐसे करके, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं एड्रीनल, एक ग्लैंड होता है, नॉट हार्मोन, माय बैड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप, उसको हम कह रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। उसके दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है आउटर पोर्शन, उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। एक होता है इनर पोर्शन जिसको हम कहते हैं मेड्यूला, ठीक है। और रिलीजिंग फैक्टर्स एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स हार्मोन्स, यस दे आर हार्मोन्स, ठीक है। तो आपके पास इसके दो पोर्शंस आ जाते हैं, एक आउटर पोर्शन दैट इज कॉर्टेक्स, एक इनर पोर्शन दैट इज मेड्यूला। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक। कॉर्टिको से क्या समझ आ रहा है? कहाँ से आ रहा होगा? कॉर्टेक्स से या मेड्यूला से? एड्रीनो से पता चल गया किडनी से रिलेटेड है, कॉर्टिको से पता चल गया कि ये कहाँ से आ रहा है, हमें लोकेशन भी पता चल गई। यस, कॉर्टेक्स से आ रहा है ना, आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स, ठीक है। सो हमें नेम नहीं बता दिया, एड्रीनो ने बता दिया किडनी, कॉर्टिको ने बता दिया एड्रीनल ग्लैंड के कौन से पोर्शन से आ रहे हैं, फ्रॉम द कॉर्टेक्स, ठीक है। ट्रॉफिक हार्मोन है, इसका मतलब ये कौन सी जगह रिलीज करेगी, कहाँ से रिलीज होगा ये? ट्रॉफिक हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन का भी मैंने बताया ना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रॉफिक हार्मोन, तो हमें पता है कहाँ से रिलीज होगा ये, हाइपोथैलेमस से या पिट्यूटरी से? एंटीरियर पिट्यूटरी, एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट, ठीक है। सो हमें देखो नाम ने हमें सब कुछ बता दिया, एड्रीनो यानी एड्रीनल ग्लैंड, यानी किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, कॉर्टिको यानी कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज हो रहा है। ट्रॉफिक हार्मोन है, कौन रिलीज करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। सो बेसिकली जब हम ACTH की बात करते हैं तो ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को कि वो रिलीज करे कॉर्टिजोल एंड अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। आपके पास यहाँ से दो हार्मोन्स आ रहे होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स है ना, ये आपके पास स्टीरॉइड्स हार्मोन बना रहा होता है, स्टीरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। एक है आपके पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एक है आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। यानी एक आपके पास आ गया कॉर्टिसोल और दूसरा आपके पास क्या आ गया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। सो आपके पास स्टीरॉइड हार्मोन ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, अब इसके लिए हाइपोथैलेमस से कौन क्या चीज आएगी?
ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन रिलीज हो रहा है ना, तो हाइपोथैलेमस से आपके पास क्या चीज आएगी, रिलीजिंग फैक्टर इसका आएगा। एक्सीलेंट, ठीक है। इसका रिलीजिंग फैक्टर आके हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि इस हार्मोन को, रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू गिव द सिग्नल टू एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, कि ये इस हार्मोन को रिलीज करे। नेक्स्ट कमिंग टू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, अभी जो आपके पास आगे 3 हार्मोन्स हमने पढ़ने हैं, दे आर एक्चुअली, मैं यहाँ लिख देती हूँ, these hormones are actually gonadotrophic hormones। ये हमारे पास 3 होते हैं, एक हमारे पास है FSH, एक है हमारे पास LH, और तीसरा जो है वो हमारे पास है प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब देखो गोनेडो से क्या पता चल रहा है, इसको लेट्स ब्रेक दिस डाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट गोनेड, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली टेलिंग कि इट इज रिलेटेड टू गोनेड्स, ठीक है। ट्रॉफिक हार्मोन है, तो ये चीज क्या बता रही है, when we say trophic hormone, तो ये चीज क्या बता रही है, ovaries and testes, yeah, that's actually gonads। आपके पास female gonads are ovaries and testes are male gonads। anterior pituitary से रिलीज हो रहा है, excellent। तो trophic hormone ये बता रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, anterior pituitary से आ रहा है, ठीक है। सो इसके अंदर हमने 3 हार्मोन्स पढ़ने हैं, एक आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक आपके पास है प्रोलैक्टिन। सिंपल सा इसका फंक्शन है। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, तो फीमेल्स के जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरीज, ठीक है। ओवरीज के अंदर आपके पास क्या चीज होती है, दे आर सिंपली फॉलिकल्स देयर, ठीक है। आपके पास लेट्स से इस तरीके से ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स पड़े हैं, ठीक है। यहां से आया एफएसएच, एफएसएच को किसने भेजा, एंटीरियर पिट्यूटरी ने, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच आया, एंटीरियर पिट्यूटरी को किसने कहा बच्चों, what are gonads, gonads are actually ovaries and testes, female gonads are ovaries, male gonads are testes, reproductive organs, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन कहेगा कि एफएसएच को सिक्रीट करे या रिलीज करे, हाइपोथैलेमस कहेगा, एक्सीलेंट। तो हम यहाँ हाइपोथैलेमस अंकल लिख देते हैं, वी हैव हाइपोथैलेमस हियर। हाइपोथैलेमस से क्या आ रहा है, जीएनआरएच। एक चीज यहाँ मैं बताऊंगी, इस जीएनआरएच को और इस जीएचआरएच को मिक्स मत करना, डिफरेंस है दोनों में, दिख रहा है अभी, एक में एन है एक में एच है, ठीक है। इसका एन भी छोटा करके लिखते हैं। सो दिस जीएनआरएच इज गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग फैक्टर या हाइपोथैलेमस से आ रहा है, यहाँ से एफएसएच उसने सीक्रेट किया, यहाँ पे आपके पास फॉलिकल्स हैं, ये एफएसएच उसको क्या करेगा, नाम ही बता रहे, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो क्या करेगा, फॉलिकल के साथ स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल को, राइट। यहां से फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे और आपके पास एक मैच्योर फॉलिकल बनेगा, मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा, दैट इज ग्रेफियन फॉलिकल। डिटेल्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि आगे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली बातें। सो बेसिकली आप एफएसएच ने क्या किया, एक फॉलिकल को स्टिमुलेट किया और मैच्योर फॉलिकल बन गया, जिसको हम ग्रेफियन फॉलिकल कह रहे हैं, राइट। सो इट्स स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल डेवलपमेंट, ओवेरियन क्यों, क्योंकि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है फॉलिकल, ठीक है। एंड ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, ये क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन भी कर रहा है। ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो हार्मोन, ईस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है, दिस इज अ ओवेरियन हार्मोन, ओवरी रिलीज करती है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्ट्रोजन, इट इज ओवेरियन हार्मोन। अगर हम मेल्स में बात करें, मेल्स के अंदर इट स्टिम्युलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, एनी आइडिया, व्हाट इज मेंट बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, you guys can write in the chat box। Spermatogenesis is actually process of production of sperms, ठीक है। सो आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करे इन फीमेल्स, एंड इन मेल्स इट इज एक्चुअली रिस्पांसिबल टू स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर कर रहा है। ओव्यूलेशन में होता ये है, सिंपल सी बात बता देती हूँ, आपके पास यहाँ पे जो ग्रेफियन फॉलिकल है ना, यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये ग्रेफियन फॉलिकल था, ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। यहाँ पे आया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ से आपके पास निकलेगा ग्रेफियन फॉलिकल से 2 चीजें, एक आपके पास
सेकेंडरी oocyte, ठीक है। एक आपके पास क्या चीज आ गई, सेकेंडरी oocyte, और दूसरी चीज आपके पास बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। दीज टर्म्स माइट सीम न्यू टू यू गाइस फॉर नाउ, बट समझाती हूँ। ये ग्रेफियन फॉलिकल के ऊपर जब एलएच ने आके एक्ट किया तो इस ग्रेफियन फॉलिकल से निकला सेकेंडरी oocyte, ठीक है, एंड साथ आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअली येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है येलो, ये हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। बट अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ ओव्यूलेशन में होता ये है। तो फीमेल्स के अंदर एलएच ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो चीज मैंने समझा दी, ठीक है। एंड इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन फ्रॉम लीडिक सेल्स, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन इज मेन हार्मोन, ठीक है, इन मेल्स, एंड इट इसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द लीडिक सेल्स। यस आई कैन रिपीट। देखो आपके पास मैंने ये बताया कि जो भी हॉर्मोन्स एंड हो रहे होते हैं विद ट्रोफिन या ट्रोफिन, तो वो आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। द वर्ड ट्रोफिन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कि ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का है। जिस तरह रिलीजिंग फैक्टर इनहिबिटिंग फैक्टर है, ये चीज बता रहा है कि ये हार्मोन आपके पास हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू प्रोलेक्टिन। सो प्रोलेक्टिन एक्चुअली मिल्क प्रोडक्शन इन द मैमरी ग्लैंड्स उसको क्या कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है, इट इज promoting milk production, ठीक है। प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग मिल्क प्रोडक्शन। आगे हम एमएसएच की बात कर लेते हैं, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मीडियन लोब का हार्मोन है, ठीक है, और ये पिगमेंटेशन को कंट्रोल, स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, और ये लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर ज्यादा एक्टिव है। टॉकिंग अबाउट पोस्टीरियर लोब, बिफोर वी मूव टू पोस्टीरियर लोब, यू गाइस कैन लेट मी नो इफ एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन इंटीरियर लोब इज क्लियर। इंटीरियर लोब वाला सब कुछ क्लियर है गाइस, देन वी विल बी मूविंग टू पोस्टीरियर लोब। क्लियर? चलो नेक्स्ट मूविंग टू द पोस्टीरियर लोब। तो आपके पास पोस्टीरियर लोब में, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, कि पोस्टीरियर लोब कोई हार्मोन बनाता नहीं है, ठीक है। तो पोस्टीरियर लोब इज नॉट मेकिंग एनी हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन बना रहे हैं। हाइपोथैलेमस के भी कौन हार्मोन बना रहे हैं, हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हार्मोन बना रहे हैं, दो हार्मोन्स, वो हाइपोथैलेमस को बना के दे रहा है। इतना अच्छा है हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर लोब के साथ, एंटीरियर लोब ने अपने हार्मोन खुद बनाए थे, ठीक है। सो आपके पास ये पोस्टीरियर लोब को हार्मोन बना के दे रहा है और कह रहे हैं सिर्फ अपने पास स्टोर करके रखो, ठीक है, एंड रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, स्टोर करने और रिलीज करने इसने, ठीक है। अब कौन से दो हार्मोन्स हमने बात करने, वी हैव एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच इसको कहा जाता है, ठीक है, एडीएच, इसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, एंड वी हैव द सेकंड हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन। सो आपके पास जब हम एडीएच की बात करते हैं, अच्छा किडनी पे आ जाते हैं थोड़ा बहुत। फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन सेम एज दैट ऑफ प्रोलैक्टिन? नो, इट्स डिफरेंट। मैं समझाती हूँ कैसे डिफरेंट है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ईडीएच फर्स्ट, ठीक है। सो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की बात करें, हम किडनी की बात करते हैं, तो किडनी के अंदर हम एक रफ सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो ये आपके पास होता है ग्लोमेरुलस, ये बोमन्स कैप्सूल है, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये बीच में लूप ऑफ हेनले आ जाता है, एंड दिस इज एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इन मच डिटेल, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि आपके पास वाटर और सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, लूप ऑफ हेनले से हो रही होती है, ठीक है। क्योंकि आपके पास देखो ये वो है जो नॉर्मल होनी है किडनी के अंदर, ठीक है। बट जब हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की बात करते हैं, वेसोप्रेसिन की, ये हम इसकी बात हम कब करें, देखो लेट्स से यू आर, योर बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, बॉडी डिहाइड्रेटेड है। उस टाइम आपके पास जब हम यूरिन प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो क्या बॉडी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगी, यानी इज द बॉडी गोइंग टू एक्सक्रीट अ लॉट ऑफ वाटर, जबकि वो खुद डिहाइड्रेटेड है, या फिर वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी बिकॉज़ यू नो द बॉडी इज ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ वाटर? What are neurosecretory cells? They are actually the cells of hypothalamus. Why is it called vasopressin? बताती हूँ, इसके पीछे भी स्टोरी है। कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी ना। देखो जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी पानी नहीं है तो बॉडी पानी को क्यों जाया करेगी,
राइट। सो आपके पास कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगी जब आपके पास बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि जब बॉडी के अंदर पानी कम है, व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम दोनों ड्रॉप कर जाते हैं, ठीक है। अब ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होने के पीछे जो मैकेनिज्म है ना, यहाँ से जो लूप ऑफ हेनले से जो वाटर और सॉल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन हुई थी वो नॉर्मल है, वो होनी ही है, ठीक है। बट अगर लेट से आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, उस टाइम आपके पास और पानी किडनी रीएब्जॉर्ब करेगी, तभी तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगी ना। तो पानी और ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, जो कि नॉर्मली में भी ना होता अगर पानी बॉडी के अंदर ज्यादा होता। वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज वी आर इन अ स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो वो रीएब्जॉर्प्शन इस वजह से हो रही है। वो कहाँ से होगी? दैट इज एक्चुअली गोइंग टू अकर फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो वो रीएब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से होगी, वेसोप्रेसिन करेगा वो रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो इट रेगुलेट्स द वाटर बैलेंस बाय इंक्रीजिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन द किडनीज, कहाँ से? फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कुछ टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, लेट्स टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी नाउ। मेक एन इमेज इन योर ब्रेन, यू आर ऑलरेडी रनिंग, योर बॉडी इज ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, बट एडीएच नहीं आया टू सेव यू। इसका मतलब नो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है। यानी आपके पास एक्सेसिव यूरिनेशन हो रही है, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रही है, द बॉडी इज नॉट रीअब्सॉर्बिंग द वाटर दैट इट वाज सपोज्ड टू रीअब्सॉर्ब, ठीक है। और साथ क्या होगा, और क्या सिम्टम हो सकता है, साथ क्या चीज हो सकती है अदर देन एक्सेसिव यूरिनेशन? आपको प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी? लेट्स टॉक अबाउट दिस। योर बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, एडीएच नेवर केम टू सेव यू, सो नो कंसंट्रेटेड यूरिन, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जिस तरह नॉर्मल होनी थी, because ADH never come, ठीक है। When we talk about thirst in this particular case scenario, so yes, you are going to feel thirsty because you are dehydrated, ठीक है। तो जब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं ना, तो वी से पोलीयूरिया, पोली का मतलब बहुत ज्यादा, यूरिया यानी यू आर गोइंग टू यूरिनेट अ लॉट, एंड पोलीडिप्सिया यानी यू आर गोइंग टू बी थर्स्टी, डिहाइड्रेशन, प्यास भी लगेगी, ठीक है। द बीमारी दैट इज एसोसिएटेड विद इट, दैट इज एक्चुअली डायबिटीज इंस्पाइरस। अब जो शुगर वाली डायबिटीज होती है, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम शुगर कहते हैं, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे हमने ये इसके जो रिलेटेड वो है वो भी पढ़ ली, डिसऑर्डर, ठीक है। नाउ कमिंग टू ऑक्सीटोसिन, ठीक है। जब हम ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, अभी हमने पहले एक और हार्मोन पढ़ा, दैट वाज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का क्या काम था? मिल्क प्रोडक्शन। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि समझ आ जाए। अभी हमने एक और हार्मोन पीछे पढ़ा, दैट वाज एक्चुअली प्रोलैक्टिन। उसका काम ये था मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। देन वी आर डिस्कसिंग अनदर हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब इस हार्मोन का क्या काम है? मिल्क इजेक्शन, दोनों का डिफरेंट काम है, ठीक है। अब समझते हैं, देखो आपके पास जब हम ऑक्सीटोसिन की बात करें तो इसने यूट्राइन वॉल्स को स्टिम्युलेट करना है, ठीक है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करें ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। समझाती हूँ, देखो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ आपके पास जो सर्विक्स है ना, वो डायलेट करता है। यहाँ पे हम बात करते हैं, सर्विक्स डायलेट करता है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा, यानी जितना सर्विक्स ज्यादा डायलेट करेगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन का सिग्नल जाएगा, उतनी ज्यादा ऑक्सीटोसिन ज्यादा। जब ऑक्सीटोसिन आएगी तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? सर्विक्स को डायलेट करवाना, समझ आ गई? यानी सर्विक्स डायलेट हुआ थोड़ा सा, ऑक्सीटोसिन को सिग्नल गया, पॉजिटिव फीडबैक है और ऑक्सीटोसिन आ रही है, ठीक है। जितना ज्यादा आपके पास सर्विक्स डायलेट और ऑक्सीटोसिन, क्योंकि हमने सर्विक्स को ज्यादा डायलेट करना है, ठीक है। सो आपके पास यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। हमने यूट्रस की डिफरेंट लाइनिंग्स पढ़ी थी, राइट, लेयर्स पढ़ी थी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। आपके पास कौन सी लेयर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करेगी? कौन सी लेयर कॉन्ट्रैक्ट होगी? व्हेन वी टॉक अबाउट चाइल्ड बर्थ, तो आपके पास कौन सी लेयर ऑफ यूट्रस इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट? एंडोमेट्रियम। देखो इम्प्लांटेशन होती है एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन होती है, यानी जो आपके पास फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, वो आपके पास आके इम्प्लांट होगा इन द एंडोमेट्रियम,
कॉन्ट्रैक्शन मायोमीट्रियम की होती है, इट इज मस्कुलर ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। शेडिंग भी आपके पास एंडोमेट्रियम की होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, इम्प्लांटेशन भी एंडोमेट्रियम में होती है, इसके यही फंक्शंस। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट मायोमीट्रियम, सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इट इज मस्कुलर तो वो मायोमीट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स मिल्क इजेक्शन, सो इट्स नॉट मिल्क प्रोडक्शन, इट्स मिल्क इजेक्शन। ठीक है, आपके पास इसका भी एक मैकेनिकल स्टिमुलस होता है मिल्क इजेक्शन का, दैट इज द सक्लिंग एक्शन ऑफ द इन्फेंट। ठीक है, सक्लिंग एक्शन ऑफ द इन्फेंट इज द मैकेनिकल स्टिमुलस फॉर मिल्क इजेक्शन, साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन का भी इसमें रोल होता है। ठीक है, इट प्रमोट्स द मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। सो एक हार्मोन का काम है मिल्क प्रोडक्शन, दूसरे हार्मोन का काम है मिल्क इजेक्शन, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस एंड यू गाइस नीड टू फाइंड दीज कीवर्ड्स व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज कि मिल्क प्रोडक्शन पूछा गया है या मिल्क इजेक्शन पूछा गया है। ठीक है, everything's clear till here? You guys can let me know by writing in the chat box if there is any questions from your side, वो भी chat box में लिख के बता दो। If everything's clear, then we will be moving to the next slide. चलो, moving to the next slide, we are talking about the regulation of pituitary function. ठीक है, हाँ, the layer of uterus that contracts during childbirth, that is myometrium, yes. ठीक है, अच्छा, रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है थ्रू रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स, ये चीज हमें पता है। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम ट्रांसपोर्ट कर रहा है इन हार्मोन्स को टू एंटीरियर पिट्यूटरी, ये इसका फंक्शन आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के तो हमने दो हार्मोन्स पढ़े, उसके साथ तो हमने नहीं पढ़ा कि आपके पास कोई रिलीजिंग फैक्टर आ रहा है फॉर वेसोप्रेसिन, कोई इनहिबिटिंग फैक्टर आ रहा है फॉर ऑक्सीटोसिन। हाँ, वेसोप्रेसिन की बात करनी थी, या एग्जैक्टली। देखो, वेसोप्रेसिन इस वजह से कहा जाता है कि इफ there is some sort of accident or something like that and you do lose a lot of blood, ठीक है, उस केस में भी आपकी जो बॉडी है, when you lose a lot of blood तो आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। इन दैट पर्टिकुलर केस सिनेरियो वेसोप्रेसिन रिलीज होता है, यानी एडीएच रिलीज हो रहा है, इस वजह से इसको वेसोप्रेसिन कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम ये फिर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा फ्रॉम द किडनी कलेक्टिंग डक्ट वाली जगह से, और आपके पास ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम थोड़ा बहुत मेंटेन हो जाएगा। सो वेसोप्रेसिन इस वजह से कहा जाता है बिकॉज इफ यू आर लाइक लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट और समथिंग लाइक दैट, तब भी आपका ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इट कम्स टू सेव यू एट दैट पॉइंट, इस वजह से इसको वेसोप्रेसिन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, सो हाँ, ये चीज हमने पढ़ी। मैंने पूछा था आप लोगों से कि आपके पास पोस्टीरियर लोब के लिए कोई इनहिबिटिंग या रिलीजिंग फैक्टर नहीं आ रहा, इस वजह से क्योंकि जो उसके हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस ने खुद बनाए हुए। ठीक है, तो आपके पास न्यूरॉन एंडिंग्स जो है हाइपोथैलेमस की, वो सिग्नल दे रही होती है डायरेक्ट टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये रिलीज करो या नहीं करो। ठीक है, तो उसके लिए कोई रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी थोड़ा लाडला है, हाइपोथैलेमस ने उसे हार्मोन्स बना बना के भी दिए। ठीक है, तो वो उसने उसके लिए कोई रिलीजिंग फैक्टर भी नहीं रखा, वो उसने कहा मैं खुद बताऊंगा आपको। ठीक है, सो वहां से जो डायरेक्ट है सिग्नल, वो न्यूरॉन एंडिंग से जा रहा होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कि ये हार्मोन रिलीज करना है कि नहीं करना। ठीक है, सो नो इनहिबिटिंग या रिलीजिंग फैक्टर फॉर दैट। मूविंग टू द डिसऑर्डर्स, ये चीजें हमने पढ़ ली हैं, वी आर जस्ट गोना रिवाइज इट। जाइजेंटिज्म, आपके पास ग्रोथ हार्मोन बचपन में बहुत ज्यादा हो जाए तो जाइजेंटिज्म होता है। इफेक्ट क्या होता है? एबनॉर्मली ज्यादा हाइट होती है। एक्रोमेगैली, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन बट इन एडल्टहुड, इसमें क्या होगा कि आपके पास इन लार्ज फेशियल बोन्स, हैंड्स, फीट, ये बड़े हो जाएंगे क्योंकि बोन लेंथ में इंक्रीज नहीं करी है, विड्थ में करी है। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म की बात करते हैं तो बचपन में ग्रोथ हार्मोन कम हो गया था, इस वजह से आप छोटे रह जाओगे हाइट में। ठीक है, बट इट इज गोइंग टू हैव नो इफेक्ट ऑन योर इंटेलिजेंस और आईक्यू व्हाटसोएवर। टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, तो आपके पास ये एडीएच डिफिशिएंसी से हो रही है, इसमें आपके पास एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, डिहाइड्रेशन, यू आर गोइंग टू फील अ लॉट थर्स्टी, राइट? देन अनदर डिजीज वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज कुशिंग्स डिजीज। सो कुशिंग्स डिजीज आपके पास जब आपके पास एसीटीएच बहुत ज्यादा हो जाता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जब ये ज्यादा हो जाता है तो जो डिजीज दैट इज एसोसिएटेड विद इट, दैट इज कुशिंग्स डिजीज। इसमें आपके पास कॉर्टिजोल लेवल इंक्रीज कर जाते हैं। कॉर्टिजोल इज एक्चुअली द हार्मोन जो एंटीरियर कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा था, राइट? सो जब आपके पास उसका रिलीजिंग आपके पास देखो, हम ये कह रहे हैं कि एसीटीएच बहुत ज्यादा है, इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी बार बार एड्रीनल ग्लैंड को कह रही है कि हार्मोन रिलीज करो, हार्मोन रिलीज करो, तो उस टाइम वो हार्मोन ज्यादा रिलीज करेगा ना, तो आपके पास इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल होगा, ओबेसिटी भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। वाई आर दीज सिम्टम्स, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड को तो उसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे तो फिर हम इन सिम्टम्स को इजीली रिलेट कर सकते हैं, राइट?
Moving to the next slide, then we are just going to summarize everything we have studied so far. पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियन. ये ढेर सारे हार्मोन्स रिलीज कर रही है, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन जो रेगुलेट करे आपकी ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, इवन रिप्रोडक्शन को भी रेगुलेट करें. ठीक है. हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन बाय रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन्स. ठीक है. और आपके पास जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, यानी जिस तरह अभी हमने जो डिजीजेस पढ़ी बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन, या हार्मोन ज्यादा हो गया या हार्मोन कम हो गया, ये 2 पॉसिबिलिटीज ही हो सकती है ना. ठीक है. तो इसकी वजह से इट कैन लीड टू सिवियर डिसऑर्डर्स दैट डू एक्चुअली रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन. सो दैट्स इट फॉर today's lecture. You guys can let me know if there are any questions or queries from your side. एडिसन्स डिजीज में आपके पास यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ना एक्सेसिव एसीटीएच. अगर आपके पास डेफिशिएंसी हो जाए दैट्स एडिसन्स डिजीज. बट ये डिजीजेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर गोना डिस्कस द हॉर्मोन्स ग्लैंड्स देमसेल्व्स. ठीक है. जब हम एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड डिजीजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. हॉर्मोन्स का काम क्या है वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. Okay, so if you guys do have any other questions, you can write them in the chat box. If not, then we are going to wind up this live session here. So yeah, let's go to the diagram of hypothalamus. So देखो, hypothalamus में आपके पास ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. इट्स लाइक अ पी शेप्ड ग्लैंड. इसमें आपके पास इंटीरियर पिट्यूटरी, यानी आपके पास यहाँ से इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं. ठीक है. देन आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, and then we have hypothalamus. Hormone stimulates pituitary to release the hormone. यानी hypothalamus जो ऊपर है, ये hypothalamus, इसने कहना है pituitary को कि वो release करे hormone. ठीक है. Then आपके पास infundibulum is actually यानी हम ये कहेंगे कि आपके पास hypothalamus और जो pituitary है they are connected through infundibulum. Connects hypothalamus and pituitary gland, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. देन वी हैव हाइपोफिजियल पोर्टल वेन्स. हमने पूरा पोर्टल सिस्टम पढ़ा ना, उसके अंदर उसकी ये वेन्स हैं. एंड देन देयर आर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो कि हाइपोथैलेमस की सेल्स हैं. इनका काम क्या है? ये रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर्स बना रहे हैं, और साथ ही साथ ये 2 हार्मोन्स भी बना रहे हैं. कौन से हार्मोन्स हैं वो 2? चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन से हार्मोन्स हैं. पोस्टीरियर लोब की. एक्सीलेंट. ट्रोफिन एंड ट्रोफिक. देखो आपके पास इट्स एक्चुअली, जिस तरह देखो मैं समझाती हूँ, सेम थिंग्स ही कह सकते हो. लेट्स से मुझे आगे हार्मोन लगाना है तो मैं ट्रोफिक हार्मोन कहूंगी तो बेहतर लगेगा. अगर मुझे कुछ नहीं लगाना है तो मैं ट्रोफिन कह सकती हूँ. सोमैटोट्रोफिन हार्मोन का नाम है, सोमैटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर. ठीक है. सो इट्स एक्चुअली दैट. Other than that, I am not seeing any other queries. So अगर कोई और question है नहीं तो फिर we are going to wind up the session here. About the diseases and their details related to other glands, we will discuss them when studying those particular glands. ठीक है. अभी it was just basics and introduction related to those. So guys, I think that's it for today's demo class then. Thank you everyone for joining, and I wish you guys best of luck for your studies and exam preparations as well. And do check out the courses from the website. And for like the regular classes, live and recordings as well, notes वगैरह भी and other features, you'll have to enroll in the courses. So yeah, that's it. Thank you so much, and Allah Hafiz.